Okay, children, we are we are back with process management. We had seen how the process undergoes many states: ready, running, blocked, terminated. Now let us see that when the process is under certain states, that means it is under a queue. It has become a new process. It is waiting to become a ready process. It is waiting to become a running process, and so on. So there are many processes which have generated, they have become new. There can be many processes which can become ready. There's a queue of the processes that we have. How does a process management deals with the queue of the processes? Which process to bring in, which process to deal with? That is decided by something called as process scheduling. So what is process scheduling? Because there are so many programs that are running simultaneously. It's a multi-user, we're talking about multi-user and multi-programming operating system. So it has to keep track of all the processes which will have to be dispatched. How do they have to be dispatched? Which process to be dispatched next? This is schedule. The process will be scheduled. How is the process going to be scheduled? So here we are just stating that act of determining which process is in ready state and should be moved to the running state is known as process scheduling. Children, when we are talking about a process, we have to keep in mind that CPU's time and attention has to be given to a process. Okay, we have to use the CPU to the optimum. Best usage करना है हमें CPU का. We don't have to keep CPU idle. Alright, this is the main aim of the process scheduler. And इसके लिए which processes have to be brought in, which have to be taken out, swap करने हैं हमें processes. This will be done by the CPU and the process scheduler. To do this, there are certain points, objectives that are taken care of. 3 marks का एक question होता है, what is process scheduling, and explain the scheduling objectives. So these are the objectives. तो criteria for the best scheduling, क्योंकि हमें सिस्टम को एफिशिएंट, फास्ट और फेयर बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया इज यूटिलाइजेशन. We have to keep in mind that the CPU is utilized in the most appropriate manner. And what is utilization? The fraction of the time of the CPU, जितना भी है CPU का, वो busy ही रहना चाहिए. The CPU should not be idle. उसकी memory और processing resources, utilization of the memory and the processors resources have to be dealt with by the CPU. How are they done? That is CPU utilization. Okay. Second point is throughput. Throughput is the output. What is the output that we are getting? So it is this, you have to remember, it is the total number of processes which are completed per unit time. जितना भी टाइम सीपीयू का पर सेकेंड है, पर माइक्रो सेकेंड है, पर नैनो सेकेंड है, तो उतने में कितना सीपीयू, कितने प्रोसेसेस आर बीइंग कंप्लीटेड, दिस वी हैव टू सी. Next point is response time. Now children, these are the definitions of the time that we have to keep in mind. ये different definitions भी आ सकते हैं. So response time is the time for responding to an event. जब हमने एक रिक्वेस्ट भेज दिया है, वो सबमिट हो गया है, जब तक हमारा पहला रिस्पॉन्स नहीं आता है उस रिक्वेस्ट पे, that time gap from the time we have submitted the request and we are getting the response, that is called as the response time. Then is the turnaround time. The turnaround time, children, you should have
a good response time and a low turnaround time. This you have to remember. Why has the turnaround time to be low? Because this is the time between जब आपने प्रोग्राम को सबमिट किया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये ऑब्वियसली टाइम लो होना चाहिए. दैट मीन्स द सीपीयू शुड डू इट फास्टली. इसलिए रिस्पॉन्स टाइम शुड बी गुड, turnaround time should be low. Third is waiting time also should be low, because waiting time means what? It is a time that the process is waiting to get itself loaded. That means to become a running process. That is the waiting time. So response time should be good, turnaround time should be low, and the waiting time also should be low. Okay. Then the load average, a number of processes which are sitting in the ready queue waiting for the turn to get on the CPU. Children, for example, if you are waiting for in a doctor's clinic, doctor अपने receptionist से बाहर पूछता है that how many patients are there. If there are 40 patients waiting outside, doctor will hurriedly start taking up the patient's query. If there are 10 to 15 patients sitting out, doctor will take around, say, every patient who he will ask. Obviously, every doctor does ask the query, but there will be a difference between if the load is less. Okay? So this is what the load average means. And of course, we have to be fair to each and every job that we are giving to the CPU. What do you mean by fair? Fairness means आपके सपोज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 4 प्रोसेसेस आपके क्यू में हैं. ठीक है, तो हम प्रोसेस 1 को ले लेते हैं, वो 7 यूनिट टाइम ले रहा है. सेकेंड प्रोसेस इज टेकिंग 3 यूनिट टाइम. थर्ड प्रोसेस इज टेकिंग जस्ट 1 यूनिट टाइम. ओके, सो दैट 1 यूनिट टाइम वाले प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 10 यूनिट्स टाइम वेट करना पड़ेगा सिर्फ 1 यूनिट टाइम रन करने के लिए. तो दिस माइट नॉट बी अ fair thing to that particular process. But again, only this is not the criteria which is to be seen when we are talking about scheduling objectives, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं. एफिशिएंसी, उसका लोड क्या है, कितना है, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन. तो in the last we can say that these are the objectives, but it is impossible to have all these objectives completely under control so that you do a process. अगर आप गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपका जो वेटिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाए. थ्रूपुट अगर गुड चाहते हैं आप, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप फेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं या रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं हो पा रहा है. सो देयर विल बी सम इम्बैलेंस इन दीज ऑब्जेक्टिव्स, बट दिस इज एन आइडियल सिचुएशन कि ये ऑब्जेक्टिव नजर में होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज सेपरेटली फॉर 3 marks. फॉर 4 marks children, you can get a question 3 marks separately. You can get a question where you are asked to define response time, turnaround time and waiting time. Okay, these were the objectives which the scheduler undergoes, sets in its mind कि मुझे ये सब कुछ कवर करना है और फिर एक प्रोसेस को आगे बढ़ाना है. तो उसके बाद अब एक वर्ड आता है प्रायोरिटी. we have seen this word, we have used this word a lot. तो अब प्रोसेस मैनेजमेंट के पास ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आई कैन अरेंज सम रेडी प्रोसेसेस इन द क्यू so that they can be dispatched one after the other for execution depending upon some policy. कोई तो पॉलिसी हम ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, प्रायोरिटी से हमारा मतलब क्या हो जाता है? किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी. और there are 10 males standing in a queue and there is one female standing at the end.
तो एक प्रायोरिटी हो जाती है, चलो फीमेल को आने दो, वो सबसे लास्ट में खड़ी है, और some senior person is standing at the 15th position where all young children are standing उनके आगे, तो he will get a priority कि आप आगे आ जाओ. So there is some policy that the process management also thinks that should be given to a process, a ready process which is in the queue to become a running process. तो हमारी जो प्रोसेसेस, ये जो प्रायोरिटीज हैं, ये इंटरनल हो सकती हैं, एक्सटर्नल हो सकती हैं, परचेज हो सकती हैं, ठीक है. ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल मींस इंटरनली सीपीयू में ही डिफाइंड है, कुछ क्वांटिटी को लेकर कुछ कैलकुलेशन करा हुआ है कि ऐसे वाले प्रोसेसेस को हमने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है. एक्सटर्नल प्रायोरिटीज जो बाहर से डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आप और मैं नहीं डिफाइन करेंगे, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज गोइंग टू डिफाइन. प्रोसेस मैनेजमेंट डिफाइन करेगा. आप जब 2-3 प्रोसेसेस उसके पास हैं, इट विल सी दैट विच प्रोसेस शुड बी गिवन दी व्हाट काइंड ऑफ प्रायोरिटी, देनी भी है कि नहीं देनी है. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर सीन. उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, प्रेफरेंस क्या देना है, क्या करना है हमारे को, उसको मेमोरी किस तरह से है उसकी. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर सीन, यू जस्ट हैव टू चेक फॉर द डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है. नेक्स्ट चिल्ड्रन इज very important, will be coming to the very important topic कि अभी हमने वर्ड लर्न किया है प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी पे अगर हम ईच प्रोसेस को बोलें कि एक प्रायोरिटी मिल गई है, तो वो तो प्रायोरिटी, जिसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे मेमोरी, टाइम रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी प्रायोरिटी बन रही है. और इन प्रायोरिटीज को नजर रखते हुए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग. वन इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग. प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में क्या होता है, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी रिप्लेस्ड बाय अ करंटली रनिंग प्रोसेस even if the process is not completed. Pre means before, empty, वो पहले ही अपने आप को सीपीयू से खाली कर देगा. अगर उसका टाइम भी खत्म नहीं हुआ तब भी वो अपने आप को खाली करेगा. दिस काइंड ऑफ स्केड्यूलिंग इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ठीक है. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली उस प्रोसेस से सीपीयू का अटेंशन ले लेगा, हालांकि दैट प्रोसेस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. उसको जो टाइम लिमिट दिया गया था उतना टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका, फिर भी वो प्रोसेस उसको उससे सीपीयू's attention will be taken. Now we are talking about the time given to the process. Children, this specific time duration जो हम एक प्रोसेस को देते हैं, that is called as a quantum or time slice. Quantum, if you all are science students, you might be knowing quantum is something which is very very small. Slice भी बहुत पतला सा किसी चीज का कट करेंगे तो उसको स्लाइस बोलते हैं, ठीक है. आइसक्रीम का स्लाइस एंड आइसक्रीम का ब्रिक, व्हाट इज द डिफरेंस. ब्रिक होता है वो पूरा बड़ा पैकेट, और स्लाइस उस पैकेट में से एक छोटा सा पार्ट. सो द whole time that the CPU has, it gives a small slice to a particular process which is called as a time slice or quantum. तो इस प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा है, जो करंटली रनिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट होता है और वापस वो रेडी में चला जाता है. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन प्रोसेस स्टेट्स में हमारे. और इस तरह की प्रोसेसेस स्केड्यूलिंग को हम प्रीएम्प्टिव बोलते हैं कि उनका अपना टाइम स्पैन खत्म भी नहीं हुआ है, फिर भी हमने उनसे सीपीयू छीन लिया, फोर्सफुली लिया है. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ठीक है. इससे हमारी थ्रूपुट डिक्रीज हो सकती है, फेयरनेस इंक्रीज हो सकती है. दैट आई माइट बी फेयर टू सम अदर प्रोसेस जो खड़ा है बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, उसको कंप्लीट कर देते हैं पहले. बट प्रीएम्प्टिव मीन्स दिस, ठीक है. नाउ देयर इज एन एग्जांपल, राउंड रॉबिन scheduling algorithm. Preemptive is type of scheduling
उस टाइप का एक डेफिनेशन क्या है कि वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को रिप्लेस कर देते हैं करंटली रनिंग प्रोसेस से। ये चीज चलती किस एल्गोरिदम से है? द नेम ऑफ द एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन दिस शेड्यूलिंग इज ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अ फिक्स टाइम, जिसको हमने टाइम स्लाइस बोला है, क्वांटम बोला है। Now, once a process is executed for a given period of time, process is preempted and other process executes for that given time. ठीक है, for example, I have 3 children. मुझे तीनों बच्चों की पोएम कंपटीशन है and I have given them 1 minute each. ठीक है, तो 1 minute में उस बच्चे ने अपनी जो पोएम बोली है उसके अभी भी 1 paragraph रहता है पोएम का, but I will say stop, come to the second child. He also spoke for 1 minute. I'll say stop. Go to the third child. He has finished it. उसका काम खत्म हो गया. I come back again to the first process. I will first child. I will say you had said something which was incomplete. Do you want to complete? Okay. Now complete it. उसने complete कर लिया, वो निकल गया. अब second बच्चा, उसका कुछ complete रहता है तो वो करेगा. So according to the time slice which has been provided. अब look at this example. Process 0, P0, P1, P2, P3. ये obviously start हो रहा है तो 0 टाइम पे अंदर हो रहा है, लेकिन उस कितना टाइम लेता है? 5 यूनिट टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में. P1 3 यूनिट लेता है, P2 8 लेता है, P3 6 लेता है. और हमने टाइम स्लाइस बनाया है 3 यूनिट्स का. हमने नहीं बनाया है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम ने बना के दिया है हमको. तो P0 देखो, P0 ने 0 से 3 सेकेंड लिए, तो अब प्रोसेस चेंज हो जाएगा बिकॉज क्वांटम खत्म हो गया हमारा. तो P1 ने 3 से 6 ले लिया. देन P2 विल टेक फ्रॉम 6 to 9. देन P3 विल टेक 6 to 12. देन P3 तक ही प्रोसेसेस थे हमारे क्यू में, तो वापस P0 आ गया क्योंकि उसका खत्म नहीं हुआ था. ठीक है, इट वॉज नॉट ओवर. उसके जितने बचे थे उतने में उसका काम हो गया. अगेन इट हैज कम टू P2. P2 का ऑलरेडी हाँ P1 3 सेकेंड 3 टाइम में खत्म हो गया था, इसलिए वो P2 पे आ गया. गेटिंग माई पॉइंट? P1 को वो इसी ड्यूरेशन में खत्म हो गया, उसका प्रोसेस खत्म हो गया है. सो हियर P0 से P2 पे आ गए हम सीधा. P2 इज 8, तो 3 यहां लिए उसने, 3 यहां लिए, अभी वो फिर बाकी है. ठीक है, P3 खत्म हो गया है, P0 भी खत्म हो गया है, तो वापस कौन फिर से आया है? P2. दिस इज कॉल्ड एज राउंड रॉबिन. घूम घूम के हम वापस उन्हीं प्रोसेसेस को खत्म करने की ट्राई करते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री एम्प्टिव स्केड्यूलिंग. ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन, द टाइप इज नॉन प्रीएम्प्टिव. ऑब्वियसली प्रीएम्प्टिव मीन्स हम फोर्सफुली ले लेते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव फोर्सफुली अपने पास ही रखता है सीपीयू. It says I will not give the CPU until my process which I am doing gets over. So the running process can only lose the processor voluntarily, अपने आप, by terminating or by request and IO. अपने आप वो छोड़े तो छोड़े, नहीं तो it will not surrender the CPU. ठीक है, like the preemptive scheduling does. क्लियर हुआ? नाउ इसके टाइप के एल्गोरिदम्स देखते हैं. The first example of this type is first come first serve. कोई चीटिंग नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, नथिंग. क्यू बन रही है, जो पहले खड़ा है उसको कंप्लीट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में कंप्लीट करेंगे, सिंपल. ठीक है, तो लुक एट द प्रोसेस हियर. एग्जीक्यूट टाइम देखो और सर्विस टाइम देखो. तो पहले प्रोसेस ने 5 यूनिट का टाइम लिया है, तो P1 का ये जो 5 एग्जीक्यूशन टाइम था, ये इसका सर्विस टाइम बन गया. P2 का इसका 5 और इसका 3, isn't it? ये दोनों सर्विस टाइम इज वेटिंग टाइम हम नहीं कर रहे हैं.
तो ये दोनों ऐड होंगे तो P2 को इतना वेट करना पड़ेगा, isn't it? और P3 को क्या है, P3 को सब कुछ ऐड करना है, उसको 8 और 3 और 5 ये तीनों ऐड करके अपना वेटिंग टाइम बनाना है, और उसके बाद वो 6 यूनिट्स लेता है अपना जॉब को एग्जीक्यूट करने में. सो हियर सी 0 to 5 फॉर P0, 5 to 8 बिकॉज 3 है, P2 का 8 to 16 जाएगा बिकॉज वो 8 यूनिट्स ले रहा है, और यहाँ पे 16 to 22 बिकॉज वो 16 यूनिट्स ले रहा है. ठीक हुआ ये? हैव यू अंडरस्टूड? सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling. One more example you can give here is shortest job first. तो हम सबसे पहले देखेंगे जो भी हमारे पास जॉब आई है उसमें P1, P2, P3, P4 में which is the shortest one. shortest one कौन सी है, so that हम लोग just to see that कि उसका वेटिंग टाइम जो है वो सबसे कम हो. शॉर्टेस्ट जॉब में यहाँ पे देखो 1, ठीक है. तो 0 से 7 ऑब्वियसली P1 ने तो ले लिया उसको, P1 तो एंटर हुआ, ये क्यू में तो जो पहले आएगा वो तो आएगा ही आएगा, पर उसके बाद द सेटिंग विल बी डन विद द शॉर्टेस्ट जॉब. अब P2 नहीं लिया उसने, P3 किया है क्योंकि 7 to 8, ठीक है. अब 7 to 8 में P3 कवर हो गया है. Now we are left with P2 and P4, and P2 and P4 take the same time, so अब the priority will be set according to the first come first serve. अगर P2 पहले आया है तो P2 solve होगा, P4 पहले आया है तो P4 solve होगा. Obviously P2 पहले है, so it will solve P2 first and then P4. So shortest job first gives a minimum average waiting time. Average waiting time इसकी सबसे कम हो जाती है. These are examples, children. It is not that the operating system uses this technology, this algorithm only. It depends. There are many such examples, algorithms of preemptive and emptive, preemptive and non-preemptive technique. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चूज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना है, उसके एल्गोरिदम्स ये है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सम जॉब के लिए नॉन प्रीएम्प्टिव चूज करता है तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव चूज करेगा, उसमें कौन सा एल्गोरिदम चूज करेगा इट डिपेंड्स. अगर प्रीएम्प्टिव चूज कर रहा है उसमें कौन सा एल्गोरिदम चूज करेगा दैट आल्सो डिपेंड्स. ठीक है. सो these, how will you explain this is, for non preemptive and preemptive you will give the definition and you will give this example. Example is not asked, children, but because it is a 3 marks question you will definitely write down the example along with it. Okay? Then children, this process management is finished. Next video will start with the memory management. Thank you, children.